تو نے کیا تیاری کی ہے اس قبر کے لیے؟ کی ہے کوئی تیاری ہے؟ کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ اتنا ہمیں پتا ہے کہ یہ جوتی میچ نہیں کر رہی، اتنا ہمیں پتا ہے یہ جیولری میچ نہیں کر، قبر کو کیوں بھول گئے ہم؟ حضرت کیوں بھول گئے؟ نہیں جانا بھائی قبر میں تو بھائی پھر کیا کرنا ہے وہاں جا کے؟ وہ بھائی ایک گڑھا ہوگا، اس میں ہمیں چھپ پھینک دیں گے، پھر اوپر جناب یہاں سیمنٹ کی سلیپیں لگیں گی، یہاں جناب لکڑ کے پھٹے لگیں گے، پھر اس کے اوپر یہ منو مٹی پھینک دیں گے ہیں جی، اور پھر کوئی 10 منٹ بھی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا۔ میں بات غلط تو نہیں کر رہا؟ 10 منٹ بھی کوئی کھڑا ہونے کو تیار نہیں ہوگا میرے کہ نہیں بھائی ذرا دل لگ جائے قبر میں، چلو کتے کھلو کے قرآن ہی پڑھیے، اوپر کھڑے ہو کے حضور کی نعت ہی پڑھ دیں، اس کا دل لگ جائے قبر نہیں۔ حضرت نسندی کرنی ہے سارے۔ میاں محمد بخش صاحب فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے، جنا لے تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے۔ اس لیے حضرت جی اگر اتنا آپ کو پتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ نہیں میچ کر رہا تو بھائی پھر یہ کیوں بھول گئے؟ ہاں جان اجے نچدے نے سسیے مور باغی، نالے وجن رباب تمبور اڑیے، اینا خام خیال دیاں خیمیاں ٹوٹ جانیاں ایک دن تناؤ بڑی۔ آج وقت ہے، آج اپنے اللہ کو راضی کرو۔ اور میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں بھائی، وقت نہیں ہے کسی کو کہنے، مار کھانی ہے کسی کو کہہ کے، ہم بہت دور نکل گئے ہیں، ہم بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح کے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیا بنے گا یار۔ ہم سڑکوں پہ بھی نکل بھی سکیں گے کہ نہیں نکل سکیں گے، پتہ نہیں ہو کیا گئے ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آئے اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں جان۔ اب حضرت جی بیٹے اور ماں کا کیا پردہ ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں میں تو اسی طرح ہی ہے، اللہ ہونا نہیں چاہیے، دوپٹہ ہونا چاہیے سر پہ، لیکن اگر سروں سے دوپٹہ اترا بھی ہو نا، بیٹا آ جائے تو ماں دوپٹہ نہیں لیتی۔ کیوں؟ میرا پتر ہے، میرا بیٹا ہے، میرے سینے سے اس نے غذا لی ہے، میرا پتر ہے، میں کیوں اس کے سامنے دوپٹہ ہے؟ میں نے ایک دو دفعہ ایک دو اور مائیاں کو غصہ کر دینی ہے نا، ہوں پتر تیرے کو پردہ کرنا ہے، اللہ لینا چاہیے دوپٹہ۔ لیکن قربان جاؤں ذرا حضرت ادھر بھی سنی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، لیکن آپ فرماتے ہیں ان 7-8 سالوں میں کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر کا بال دیکھا ہو۔ حضرت جی بال سے بڑی دور رہ گیا، میں اب اس سے آگے کیا بولوں؟ میں خود بیٹیوں والا ہوں، میں خود بہنوں والا ہوں، اب میں کیا ہو رہا ہے؟ ہاں حضرت جی خدا دا واسطہ دوپٹے نہ چھڈو، چادر نہ چھڈو یار، نہیں جی رہنا ہے تھے جانا جی تم کیا ہے؟ فرماتے ہیں کبھی نوبت نہیں آئی کہ حسن نے بھی اماں فاطمہ کے سر کا بال دیکھا ہو، اور آج کیا ہو گیا یار؟ ہم غیروں کی نقل میں کہاں تک چلے گئے ہیں؟ اور نہیں، ہم نے ان کی نقل ہم نے نہیں کرنی، ہم نے تو سیدہ فاطمہ کی نقل کرنی، ہم نے تو سیدہ عائشہ کی نقل کرنی ہے۔ ہم کس راستے پہ نہیں؟ اس لیے محنت کرو، لو لگاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرو، لڑاؤ نہ بلکہ محبت بانٹو، محبت بانٹو۔ ہم نے اپنے گھر میں دانے جنگ بنا دی ہیں، ہر بندہ ہی غصے چ ہسنا تو ہی بھول ہی گئے ہیں، ہاں جہاں کام ہوئے گا وہ ہس لینا، انہیں نہیں ہسنا سی کسی کا نہیں۔ محبت کرو۔ وہ اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ کی مخلوق سے میں بس آخری بات کر کے گفتگو ختم کروں گا۔ ذرا دیکھو، کیونکہ مجھے حضرت نے صلہ رحمی اور والدین کے لیے کہا تھا، دیکھو یار ہمارے بڑے تھے کیا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میری کوشش رہی کہ میں ابو بکر پر سبقت لے جاؤں، لیکن پھر وقت آیا کہ حضرت عمر کو کہنا ہی پڑ گیا کاش عمر نہ ہوتا، ابو بکر کے سینے کا اقبال ہوتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے ابو بکر سارا کو جی للہ گارے سور دی ایک رات دے دے۔ آپ فرماتے بڑی میں نے کوشش کی، پھر سمجھ آ گئی نہیں بھائی یہ کام نہیں ہونا کوئی بھی۔ آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک کے مضافات میں نا، مدینہ پاک کے باہر ایک مائی صاحبہ رہتی تھی
जो आंखों से नबीना थी, जिनको नजर नहीं आता था कोई, और उनका था भी कोई नहीं, एक ही बेटा था, वो किसी गजबे में जामे शहादत नोश कर गए। तो आप फरमाते हैं जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उसकी खिदमत की जिम्मेदारी ले रखी थी। हमारा जब क्या मिजाज है, जू जू पैसे आने ने असी यार छड़ छड़ने, गरीब यार नहीं भाई, अब मेरी ये सोसाइटी नहीं रही भाई, तेरी सोसाइटी को क्या हो गया, तेरे पास पैसा आया तो तेरा सारा कुछ ही बदल गया। हमारे पास तो पैसा आया, हम गरीब रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं हजरत। हाँ हजरत, सिर्फ डर क्या है, कहीं पैसे ना मांग ले। और मैं आपसे कहूंगा हजरत, जिस दिन आपके दरवाजे पर को पैसे मांगने आए ना, तो देख के अल्लाह का शुक्र करना, लंबा सा सजदा करना। काहे को, या अल्लाह तेरा शुक्र है तूने देने वाला किया, कहीं लेने वाला नहीं कर दिया। हाँ? और भाई अगर खुदा ने दिया तो क्यों देते हो, पैसे रोते हो, खुश हो के देना हजरत। और मैं आपको बता दूं हमारे इस्लाफ का मिजाज क्या, इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दोस्त थे, तो आके ना रोने लग पड़े। आपने फरमाया भाई क्या हुआ, और करदा हजरत मैं आना नहीं सी ताड़े कल, लेकिन मैं अब मजबूर हो गया हूं, मेरा कहीं बस नहीं चला, बस आपकी खिदमत में आया हूं, मुझे कुछ अनायत फरमाए। लिखा इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला ने 50,000 दिरहम अता फरमाए। ठीक है जी, अब तो 50,000 अपनी जेब में लेके घूमे, पता नहीं लगता किसी को। 50,000 दिरहम सिक्के थोड़े होते हैं, यहां तक कि हजरत जी ऊंट देना पड़ा साथ, जिसने इतने सिक्के उठाए। ठीक है, जब वो चला गया ना, हजरत सजदे में सर रख के रोने लग पड़े। वो जो हुजूर का गुलाम था ना, उसने अर्ज की हुजूर दोस्त आया, 50,000 सिक्के अनायत फरमाए दिरहम आपने, तो रो क्यों रहे हैं? आप फरमाते हैं यार रो इसलिए रहा हूं, वो मेरा दोस्त इतना परेशान था, मुझे पता ही नहीं लगा कोई, उसको आके कहना पड़ा मुझे, मैं कैसा दोस्त हूं कि मुझे पता ही नहीं मेरा दोस्त इतना परेशान है, उसको आके कहना पड़ा मुझे। मैं इस पर अपने अल्लाह से माफी मांग रहा हूं कि मैं अपने दोस्त इतना बेखबर क्यों रहा, मुझे पता ही नहीं चला मेरा दोस्त इतना परेशान है, उसको आके कहना पड़ा, तो फिर मैंने उसको दिया। है जी, हमारा क्या हाल है, हमारे पास पैसे आ गए तो हम हमारे दोस्तों को बुलाना छोड़ देते हैं कि पैसे ना मांग ले, हमारे रिश्तेदारों को मुंह नहीं लगाते कोई नहीं। हाँ भाई, अगर यहाँ कोई पैसे वाला बैठा है, मैं सीधी बात आपको कहने लगा हूं, और भाई कोई तेरे में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी जो तुझको अल्लाह ने पैसे दे दिए, तो उसमें कोई ऐब नहीं था, अल्लाह ने नहीं दिया, तू भी अल्लाह का रंग है, वो भी अल्लाह का रंग है। मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कह दिया, आप फरमाते जे चाहे तेरा जांदे नू तख्त अता फरमाए, जे चाहे ते शाह कोलू दर दर खैर मंगाए। ये बेनियाजियां बादशाह की हजरत, तुझे दे दिए उसे नहीं दिए, लेकिन तुझे दे के फिर हुक्म दिया, हाँ अगर तुझे दिए तो इसलिए दिए कि तूने भी उनको देने हैं। लेकिन क्या है, हम निकल पड़े हैं कलियां खाने में। तू कितने दिन खा लेने हैं, अनकरीब तेन डॉक्टर ने मोड़ छड़ना सारा कुछ, तू दलिया ही खाना करना है बस। हाँ हकीकत बता रहा हूं, हाँ जिसको बांट के खा सारी जिंदगी खाएगा, इसको बांट के खा, कल्ला ना खा। और अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुद्दु अला तामिल मिस्कीन। है फिर सूरह फज्र में एक और मज़मून है, कल्ला बल्ला तुकरिमूनल यतीम वला तहाद्दूना अला तामिल मिस्कीन, है व ताकुलूनत तुरासा अकलन लम्मा व तुहिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा। है जी, कल्ला इज़ा दुक्कतिल अर्दु दक्कन दक्का व जा रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा व जीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। फिर बंदा की कहेगा, यकूलु या लैतनी क़द्दमतु ली हयाती, और काश यार मैं अपनी अगली जिंदगी ਲਈ कुछ कीता हुंदा है। उत्थे अमलां दे होने ने नवेड़े, किसने नहीं तेरी जात पूछनी है। तो अगली जगह से फोन आने शुरू हो गए। तो आप कहते हैं मैंने, मेरी हमेशा कोशिश रही मैं अबू बकर पे सबकत ले जाऊं। वो माई साहबा थी तो जनाब ने खिदमत की जिम्मेदारी ले रखी थी। जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह हैं अफ़ज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़, हैं जी, अंबिया के बाद इस जमीन की सबसे अफजल तरीन शख्सियत है, यारे गार यारे मेजार हैं। हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने सबका बदला दे दिया, अबू बकर का बदला अल्लाह देगा। हैं जी, को थोड़ी हदीस नहीं वारद हजरत की शान में, हैं रफीक है हुज़ूर नबी ना, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। ठीक है जी, वो आप फरमाते जब कहीं जाते थे ना तो जनाब ड्यूटी किसी की लगा देते थे, वही आज जरा जाके तो माई का ध्यान कर ले। जनाब फारूक आज़म कहते हैं हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ड्यूटी लगा रहे थे, मैंने सुन लिया, मैंने कहा ले भाई आज मौका ही। उस बंदे को कहा तूने नहीं जाना, मैं खिदमत करूंगा।
और आप फरमाते इरादा ये था जाके इस तरह की खिदमत करनी है कि माई आज ही कह दे लै वे खिदमत तू ही की है? अबू बकर ने क्या की है? खिदमत तो तूने ही की है आज। आप फरमाते मैंने उसको कहा तूने नहीं जाना कोई, मैं जाऊंगा। आप फरमाते गया, मैंने जाके ना मट्ठा सा सलाम दिया ताकि इसको अभी ना पता चले कि अबू बकर नहीं आया, आज भोर आया है। फरमाते जाके मैंने सफाई की, झाड़ू दिया, ठीक है जी। तो ताज़ा पानी भर के लाया है जी। तो फिर जो है ना वो छोटे मोटे काम किए, सालन पकाया, आटा गूंदा, रोटी बनाई, बना के ना मैंने अम्मा को बिठाया और सालन में डिप करके ना रोटी का नवाला। अब फरमाते जब अम्मा के मुंह को लगाया तो अम्मा आगे से कहती है आज अबू बकर नहीं आया। हाय हाय, आज अबू बकर नहीं आया। अब बड़े जलाल था के मिजाज। आप फरमाते मैंने कहा अम्मा तेन तो लभदा है, वो तुझे तो नजर आता है, तू झूठ बोलती है कि तू अंधी है? उसने कहा आने वाले खुदा की इज्जत और अजमत की कसम मुझे नजर नहीं आता। आप फरमाते मैंने कहा नजर नहीं आता तो फिर तुझे किस तरह पता चल गया जब अबू बकर नहीं आया? आप फरमाते उसने मुंह खोल के दिखाया तो मुंह में दांत ही कोई नहीं था है। वो कहती जब हजरत अबू बकर आते हैं तो नवाला पहले अपने मुंह में डाल के नरम करते हैं, फिर मेरे मुंह में डालते हैं। आज जब सख्त नवाला मेरे मुंह को लगा मैं समझ गई अबू बकर नहीं आया। और किधर है ये वाला इस्लाम? अल्लाह अल्लाह किधर ये वाला इस्लाम किधर है यार? ये वाला इस्लाम किधर है? वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला। मुझे कहने लगता है इतने लड़न आए हैं और एक दूजे ने। जनाब भरजाई ने भी सोटा मुंडे ते रखिया ते ननान ने भी गंडासा फड़ लिया है जी। सस ने भी तोप कढ़ ली दी है ते जनाब नूह ने भी बंदूक फड़ी दी है। कार का देने मैदान जंग बने देने, सुकून है ही कहीं नहीं है। वजह क्या? दीन से दूरी है। सिर्फ आप दीन पढ़ें, आप दीन सीखे। दीन क्या सिखाता है? माफ कर दो। हाय हाय। मैं अक्सर मैं पूछता हूं मजमू में जाके ना, मैं कहता हूं ओ भाई जे को सस बैठी है तो मोदे नाल ही मुखातब, जे को नूह बैठी है तो मोदे नाल ही मुखातब, जे को ननान बैठी है मोदे नाल ही मुखातब, जे को भरजाई बैठी मोदे नाल भी मुखातब। ओ भाई क्या कर दिया होगा किसी ने? ऐਵੇਂ बस छोटे मोटे जुमलों की तकरार होती है जो पता नहीं हमको कहां से कहां तक ले जाती है। मैं बड़े अदब से अल्लाह मैं ये बात सुनाता नहीं, लेकिन सुनाता हूं ताकि हमारे दिल में एहसास पैदा हो, हमने माफ करना है। क्या किया होगा किसी सास ने किसी बहू के साथ, या किसी बहू ने किसी सास के साथ? हैं जी, कुर्बान जाऊं, कायनात का सबसे खूबसूरत वजूद है। वाजमलु मिन कलम तरक़तु ऐनी वहसनु मिन कलम तलिदिन निसा है। ठीक है जी, हैं किथे मेर अली किथे तेरी सना है जी। लेकिन क्या है लिखा है आका करीम अलैहिस्सलाम से नियरम में नमाज पढ़ रहे हैं, किसी ने ऊंट दबा किया है, काफिरों की नजर पहले उजरी पे पड़ी फिर हुजूर पे पड़ी, आपस में बातें कर रहे हैं कौन है जो ये उजरी उठा के हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पे रख। हुजूर सजदे में गए, वो उजरी उठा के हुजूर के जिस्म मुबारक पे रख दी गई। हजरत फातिमा आई हैं, साथ रोई और साथ वो उजरी हुजूर के जिस्म मुबारक से उतारी है। हुजूर के चचा को किस बेदर्दी से शहीद किया गया, इतना सताया गया कि हुजूर ने शहर मक्का छोड़ दिया। हजरत क्या नहीं हुआ हजरत हैं, उलमा बैठे हैं, क्या नहीं हुआ हजरत। लेकिन क्या है आज हुजूर फातेह बन के मक्का में दाखिल होंगे, आज काफिर डरे हुए हैं, आज कांप रहे हैं, आज पता नहीं मोहम्मद हमारे साथ क्या करेंगे। हैं जी, बात हुजूर नबी अलैहिस्सलाम तक आई तो मुस्कुरा के फरमाया आज मैं तुम्हारे साथ वही करूंगा जो हजरत यूसुफ ने अपने भाइयों के साथ किया था। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज किसी ने कोई पूछ नहीं है। ओ यार क्या हो गया हमें यार, क्या कर क्या रहे हैं हम हजरत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है। वो जहां जाओ नफरतें ही नफरतें, मोहब्बतें कहां चली गई यार। जिधर जाओ नफरतें ही नफरत, जिस मजलिस में बैठ जाओ नफरतें ही नफरतें, मोहब्बतें कहां जाओ। हम उनके मानने वाले हैं हजरत। फरमाया हजरत वाशी रज़ी अल्लाह ताला, हजरत बैठी हैं माशाल्लाह, उसने सिर्फ हजरत मीर हमजा को शहीद नहीं किया, उसने क्या किया हुजूर के चचा का सीना चाक किया है जी, मुसला किया, चेहरा मुबारक बिगाड़ा। इतना उसने हुजूर के जिस्म मुबारक को बिगाड़ा था। मीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शनाख्त नहीं हो रही थी। हुजूर की फुफो जान ने आके चीची उंगली से पहचाना था कि ये हजरत मीर हमजा का जिस्म मुबारक।
हिंदा ने कसम खाई थी मैं हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाऊंगी। उसने कलेजा, हुजूर का पेट काटा, फिर उसने फिर हुजूर का कलेजा निकाला। हिंदा ने चबाया, चबाया नहीं गया, कह आ गई उसको हजरत। वो वाशी भी आई, हुजूर ने माफ फरमा के कहा बस वाशी इतना ना करना, सामने ना आके बैठा कर, पीछे बैठा कर, तुझे देख के मुझे अपना चचा याद आता है। हमें क्या हो गया यार, लड़न आए या थे, हमने घरों को मैदान जंग बना के रख दिया है। सस ने भी तोप चुकी है, नूह ने भी बंदूका कड़ी दी ने। ओ खुदा दा वास्ता, मुख्तसर सी जिंदगी है, बस खेल के गुजारो इसको। और मैं यहां ये कह के बस बात को खत्म करूंगा आदम चिश्ती के फिक्रे पे। और उसने कमाल लिखा था, वो कहता है हमने आदा के मजालिम का गिला छोड़ दिया, हमने आदा के मजालिम का गिला छोड़ दिया, देख के तुझ पे जो अपनों के सितम याद आए।